Ji, Assalamualaikum, ladies and gentlemen. Welcome back to another episode of Stumps and Insights, the ultimate cricket discourse. Tonight, I have a very special guest with me who happens to be my instructor as well and has a very keen interest in the game of cricket, the game that we all love. He is also a cricketaholic, of someone who loves cricket quite a lot and is quite literally obsessed with the game, just like me. Please welcome Mr. Taimoor Waraich. Sir, how are you doing today? Yeah, I'm doing fine. I'm doing fine. Thank you for having me. And it's always fun to talk about cricket. I've always enjoyed it. It's something that I've always had a keen interest in since I was growing up. So, and then it's been a part of my life throughout my childhood, even while I was growing up. And so, yeah, I'm up for any questions, and let's like have a good discussion on it. सर सबसे पहले तो आप थोड़ा सा बताएं अपना कि जिस तरीके से आपका लाइक क्रिकेट की जर्नी किस तरीके से स्टार्ट हुई आपने कहाँ खेला है एंड विद अ स्पेशल मेंशन टू द एलएमएस लीग that has been going around in Pakistan since quite a while and I know that you have played it तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं and फिर we'll discuss. Yeah, like everyone in Pakistan, I would say mostly the cricket journey started for me when I was growing up. From the streets, I still remember every day after school, you used to get together with your neighborhood kids and we used to play on the street, right? I think, at least for my generation, I know it's different for your generation now because अब वो street cricket का वो concept मुझे नहीं नजर आता जो when I was growing up I could see कि every other street that I used to go there was some cricket happening over there. People were playing. We used to have night cricket in the streets. We used to have fights because of that. People complaining, all that stuff. I still remember every Sunday we used to wake up at around Fajr, go to the cricket ground, start playing there. Because if you go there late, someone else will come there and then take the good spot. So you had to get the good spot to really have a good time. So ये सारी चीज वहीं से मेरा भी जर्नी शुरू हुआ. Tape ball cricket, like everyone else, I used to bat mostly, and then when I was young, I used to bowl really fast. At least used to try to bowl fast. And फिर हार्ड बॉल क्रिकेट मेरी इस तरह शुरू हुई कि आई वाज इन एचसन तो वहाँ पे even when you're young like in class 4 or 5 they introduce you to that actual cricket, you know, that cricket glove kit जो cricket की होती है, you for the first time you get to hold a proper cricket bat. तो वहां से क्रिकेट का ऐसे प्रॉपर इंट्रोडक्शन हुआ. फिर obviously growing up we used to watch cricket. uh, I'd say my first proper cricketing memory of a World Cup, because recently भी World Cup गुजरा है तो मेरे mind में है. That would be the 2003 World Cup. The first, I would say that's my first memory. I still remember Saeed Anwar scoring that century against India, and then Shoaib Akhtar, Waqar, and Wasim, they got tonked around the park by Sehwag, and then I still remember there was a shot over mid-on that barely went over a fielder's head. वो fielder गलत खड़ा हुआ था, वो circle में आगे खड़ा हुआ था. So I still remember that. इस तरह ही बस वहां से शुरू हुई जर्नी. फिर मैंने अपनी जो the area where I used to live, I joined a club there, played some cricket there, got to a certain level, but then growing up आपके पास और इतनी opportunities and distractions होती हैं like studies and stuff, and then your family generally, for kids that are doing well and for families that are doing well, they generally do not tend to focus on things like cricket. तो बस फिर आप स्टडीज में इन्वॉल्व हुए तो इस तरह फिर आई वेंट केम टू एलएससी आफ्टर एचसन, एंड देन एलएससी में आई प्लेड फॉर द एलएससी टीम. वहां से बस फिर एक क्रिकेटिंग फेटर्निटी स्टार्ट हुई, एंड फिर पाकिस्तान में एलएमएस जो लास्ट मैन स्टैंड लीग है वो शुरू हुई, बस वो खेलना शुरू की. एंड देन वी आई स्टिल वी for the longest time, I think from 2000, I'd say 2012 to 22 23, I've been playing with the same core of people जिनको मैं तब मिला था. And that's about it about my cricket journey. इसके अलावा obviously always been a keen watcher of cricket generally, not just Pakistan cricket. uh, Overall world cricket को भी follow करते हैं because it's an area of interest, and sports generally भी पसंद है, so it works out for itself. Yeah.
सर आपने एलएमएस की बात की तो आई थिंक दिस वुड बी द राइट टाइम कि मैं आई गिव अ मिनी शाउट आउट टू द टू पीपल दैट आई नो इन एलएमएस। मैंने भी कुछ मैचेस खेले हुए एलएमएस के, लेकिन वो उस टीम का नाम ही एक्सपायरी डेट था। एंड उसके आई प्लेड मैंने दैट गेम। जी I've played for that team. I know who runs that team. He's a close friend. Again, I met them in LSA as well. Zakia Fawad, he's a very old जी and जी close बिल्कुल। friend. He is very strongly opinionated as well about cricket. But he is सेम one of हियर। those people who you can actually have a good cricketing conversation with. He's got a good cricketing mind. Although we've disagreed on so many things, and which have led to us fighting as well. But but yeah, but we've played cricket for a good 10 years together. So yeah, I know him pretty well, and that team as well. It's a fun team to play for actually. Like there's no इट्स अ वेरी pressure on फन you टीम। generally. और जो दूसरे जिनको मैंने बात करी थी, इरफान जक्का, उनके साथ मैंने खेला नहीं है, बट ही यूज्ड टू टीच मी इन ए लेवल्स। तो आई नो कि ही इज आल्सो, अब आई डोंट नो व्हाट दैट लाफ रिप्रेजेंट्स, बट मुझे ये पता है कि एलएससी लेजेंड या पता नहीं किस टीम में वो, मतलब ही इज सम ही Hey, इज अ नोन पर्सनालिटी इन I, एलएमएस। so LMS circle में उससे पहले भी obviously even I had heard about Zaka भाई because उनके अबू भी मैथ्स के टीचर थे और उन्होंने मुझे भी पढ़ाया था. So उनका मुझे वैसे थोड़ा सा वैसा आइडिया था, but then I met him on in the LMS circuit obviously, and वहाँ पे हमने काफी क्रिकेट एक दूसरे के खिलाफ भी खेली है, एक दूसरे के साथ भी खेली है. And honestly, yeah, like he's one of the calmest fielders I've seen on a cricket field. Like उनका तो it's like he the way he catches the ball, I think उनसे ज्यादा casually कह लो कि मैंने competent fielder जिंदगी में नहीं देखा होगा. Like उनके the funny thing is it's just a funny incident. I hope he doesn't mind me telling this. But so many times I've seen it on the boundary line that he's standing there holding a cigarette in one hand and the mobile in his other hand texting someone, and then there's a catch and he puts the mobile in his pocket, the cigarette is in his mouth, and one hand goes up and catches the ball and then throws it back and goes on with his life smoking that cigarette, texting that person whoever he was talking to. So he's a very casually competent fielder, that is what I would say, and an excellent batsman as well. सही, ये तो I saw I saw his ये तो the one memorable innings he played was in Thailand, and very rarely do you see such an innings because it was an extremely fast wicket with proper fast bowlers. I would say those bowlers were close to first class cricket quality bowlers, and then he spanked them all around the ground without a helmet. Like you wouldn't see that wicket in Pakistan. You wouldn't see those fast bowlers at our level at least, and everyone सही। was struggling against him, and then he went out there without an helmet and hit them around the park, and he scored a match winning 50. I still remember that ये innings in वाली जो Thailand. कामनेस, ये वाली जो कामनेस, आप ये जो थग लाइफ इनकी है ना, ये मतलब ये मुझे, मैंने तो उनसे पढ़ा हुआ है, तो मुझे उसमें भी होती थी, बड़े चिल रहते थे, Hmm. टेंशन में नहीं आते थे इतना। और मैंने Obviously, लेकिन it's I यार, think it's the part of his personality, या and एक that और like, चीज, he reflects in his एक cricket और as चीज well. मैंने ये सुनी है, आई हैवंट प्लेड हिम, बट मैंने सुना है कि बड़ी कैजुअली आके स्लो स्पिन कराते हैं, लेकिन वो फिर भी आउट कर देते हैं, मतलब इतनी हुई तेज नहीं कराते। मतलब दैट इज व्हाट आई Hmm. हैव हर्ड, आई डोंट रिमेम्बर किससे सुना था मैंने, बट दैट इज द वर्ड अराउंड द कॉर्नर आई थिंक। He's a tricky bowler to play against because he doesn't give you any pace. Like एक तो होता है spinner का ball ना, I'm a spinner as well, but and then there are, although I'm not known for flighting the ball, but there are spinners who are known for flighting the ball. But Zakabai doesn't really flight the ball. He just releases it in the air, and then it's too slow for the batsman to hit it out to play the ball with any momentum. So anyone that does not have the power to hit a big six, they generally do tend to struggle against him because he doesn't give you any pace. And then what he's really good at is that without giving you any pace, he's really able when he manipulates his length on the wicket. Like he's able to control the या length with same pace. यू So कैन से that कि is ही what नोज like हिज, sets him he apart. But then if he's not having a good day, then he can have a really bad day as well with the ball. So you could say that that's like part he and knows parcel his, of him. he knows his strengths and he knows how to play according to that. Mhm. एलएमएस की तो बात हो गई सर, अब जरा थोड़ी Mhm. असल टीम पे आते हैं जो हमारे Interesting. वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस रही है। वर्ल्ड कप में तो खैर
इट वाज अ वेरी यू कुड से डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस ले दे के फिर हम लोग वापस वहीं पे आते हैं कि 92 में ये हुआ था 92 के साथ कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं बारिश होगी इधर उधर ये इधर क्यों हो रही है उधर क्यों हो रही है इंडिया जीते तो ये जीते फिर वही कंपैरिजन हर हाँ, दफा I हो जाता है understand. क्या लगता है आपको स्पिनर्स का मैंने देखा था स्पिनर्स के मैं स्टार्ट्स निकाल रहा था 2000 से लेके अब तक जितने वर्ल्ड कप्स हुए हैं ओडीआई के पाकिस्तान के सबसे वर्स्ट आई थिंक ये रिकॉर्ड रहा है स्पिनर्स का वर्ल्ड कप में तो ओवरऑल आपको क्या लगता है कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग एंड इज द कंपेयर इज वाज द क्रिटिसिज्म ऑन बाबर आजम as मतलब do you think that the exaggerated criticism that Babar Azam received do you think that it was right? Okay, so the first thing that we can talk about is the spinners, right? So spinners, the issue that we have with our spinners is that they haven't played, at least in my view, is that they haven't played enough 10 over cricket. Like by 10 over cricket, I mean where they have to bowl longer spells, in over spells. So that's 50 over cricket. Or they haven't played enough first class cricket. For any spinner to be effective in the long run, you need to have a lot of balls bowled. Okay, they have Shadab, Nawaz, uh, even Osama. They're all T20 products, right? And they came onto the scene. They did well in the T20 format. They did decently well in the ODI format as well, right? They weren't that bad at the start. But we've known for a while that our spinners have been fairly average. The reason it wasn't that big of an issue was because our fast bowlers were doing so well that they covered whatever was lacking in our spinners, right? And we won most of our matches wherever the bowling has done well. Most of them were won because of the fast bowlers. I don't remember a particular match that our spinner did well in when it comes to ODI cricket. In even in Test cricket, the previous Test cycle where we had a very good opportunity to qualify for the final, where all our home tours were against good teams, but all our away tours were against significantly weaker teams. So it suited us in that way. But we missed that opportunity of doing well, and our performances during that time were very average. The reason for that was that we were missing a quality spinner in our team, in the test team as well. Ibrar is a new find. He's doing well. He did well in the first few series, but it's still a long way for him. And other than the spinners, I felt that our preparation for the World Cup was lacking. Maybe they went in overconfident. They've been doing really well for the last 2, 3 years against whatever you want to call them. But the teams that were sent to Pakistan, they did not have a choice in that, right? So they had to play those teams, and they played really well. They won most of the matches. They climbed up the rankings. We got to number one. So there were good things in place as well. And then you have the unfortunate injury before the World Cup, which upsets your bowling lineup, right? So Naseem, and then your replacements for the your first three preferred fast bowlers also were injured. So if Naseem got injured, your first choice might have been Hasnan because he's similar in pace, but Hasnan was injured. Then you might have looked at Ihsanullah, although I don't think he would have been a viable option because he hasn't played any cricket. He's a new PSL find. It's going to take him a few years. So without Naseem, your fast bowlers got disrupted. And Shaheen obviously did not do as well as everyone expected him to, which is fine. A bowler can have a bad tournament. I don't think that's a big issue. But वही ना इसमें कि कई इसमें कई चीजें एक साथ you know started coming in at the wrong time. Some bad injuries, then playing in India for the first time. देखो, no matter what you say, the conditions might be similar, or it's like subcontinent conditions, so our players need to do well there, yes. But they had zero experience of playing in India. I don't think anyone in that team had ever played in India or played an international match, and so that has an impact. And then after that, your key players did not do well. Babar himself underperformed. For an average batsman, the tournament he had would have been okay. But for the quality of batsman he is, not to score 100 in a World Cup, we get 9 games. That's a bad performance for him as well. But players can have that bad performance.
the overall performance, I'm sure every fan was disappointed. We did not get to the semi-final even, but that's how it is. They went in a bit undercooked and they got exposed. But the good thing is that you can only move forward from here, right? As a cricketing team, so you should look to the future and see the mistakes that you've made. And maybe because the great thing about this World Cup was that the two teams who got to the final, India and Australia, they had nine, I think 9 and 8 out of their playing 11 were proper test cricketers, right? So that gives you a good template on what you need to be successful in, what you need to be successful in world cricket. It's that you need proper, good format players. These players can adjust in any format, right? So if you're a good enough test player, you can adjust in the ODI format, and that is what India and Australia have shown. So I think we're over relying on T20 cricket, and that happens when your league is growing because those are the performances that everyone is watching. So PSL में कोई भी player perform करेगा तो everyone is going to be watching him and everyone will want him in the team, right? बट अगर नेशनल जो आपका डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उसमें कोई बंदा 600 भी मार देगा, कोई भी नहीं देख रहा उसको, और उसको क्योंकि कोई देख नहीं रहा तो उसकी कोई बात नहीं कर रहा, so he is not going to be preferred. सो ये एक फ्लॉ है हमारे सिस्टम में, एंड आई होप कि इस टूर्नामेंट ने इनकी आंखें खोली हुई इस मामले में कि दैट यू नीड क्वालिटी प्लेयर्स इन द टीम दैट आर गुड इनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट एंड देन दोज प्लेयर्स कैन adapt their game to the other formats. जी, आई थिंक सर यू हैव मेड काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। सबसे पहले तो आई थिंक जो स्पिनर्स की बात है उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना कि जो स्पिनर्स थे दे डिडंट परफॉर्म अप टू द एक्सपेक्टेशन। बल्कि एक तो मैच था, मतलब इतनी शर्मिंदगी की बात है कि आप एक सब कॉन्टिनेंट में मैच खेल रहे थे हम, न्यूजीलैंड वाला जो मैच था उसमें वी एंडेड अप गोइंग विद 4 पेसर्स एंड 2 पार्ट टाइमर्स, क्योंकि हमारे स्पिनर्स की परफॉर्मेंस ही नहीं थी कोई। तो हमें ऑल्दो हमें उस मैच में तो कुछ नहीं, पड़ा, uh, 400 देखो पड़ा। टू बी फेयर, देखो टू बी फेयर, अगर आपके आपके स्पिनर्स से कोई एक्सपेक्टेशंस थी तो आप फिर क्रिकेट को फॉलो नहीं कर रहे, बिकॉज अगर आप अपने स्पिनर्स की परफॉर्मेंस को फॉलो कर रहे होते तो आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, हाँ, नो वन एक्सपेक्टेड देम टू बी दिस बैड, बट नो वन एक्सपेक्टेड देखिए, देम टू बी गुड ईदर. जब जब इंडिया में कोई सब कॉन्टिनेंट में टूर्नामेंट हो ना, तो बेशक आपके स्पिनर्स उतने एक्सेप्शनल ना हो, बेशक आपके पास अजमल ना हो या बेशक आपके पास पी के यासिर शाह ना हो, तो एक वो कन्वेंशन होती है कि मतलब यू डू एक्सपेक्ट योर स्पिनर्स टू टाइटन, एटलीस्ट इकोनॉमाइज द रन फ्लो इन द मिडल ऑफ द इनिंग्स, जो कि नहीं हो सका। दूसरी जो आई थिंक जो आपने वो बात की कि वी डिडंट हैव अ गुड रिप्लेसमेंट फॉर नसीम, मुझे ये लगता है कि समवेयर आई थिंक हसन की इंक्लूजन तो ठीक थी, बट मेरे ख्याल में जो स्क्वाड हमारा, आई थिंक स्क्वाड को अक्सर बोलते हैं लोग कि बाबर ने अपनी मर्जी से किया, बट आई डोंट थिंक इससे बेहतर कोई स्क्वाड था। दीज वर द बेस्ट दैट पाकिस्तान हैड। एक जो मुझे लगता है ना कि आइडियली मैं वो करता, आई वुड हैव टेकन ओनली वन ऑफ सऊद एंड अब्दुल्ला शफीक इन द 15, और जो ज़मान खान की इंक्लूजन है ना, वो मेरे ख्याल में नहीं बनती थी। ज़मान खान की जगह होना चाहिए था फ़हीम अशरफ को, और आई डोंट केयर इफ ही बैट्स एट 10। मुझे इस चीज़ से गर्ज़ है कि वो नसीम शाह की लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट इस तरह से हो सकती थी कि इफ ही व्हेन ही बॉल्स विद अ न्यू बॉल तो ही इकोनोमाइज़ेज़ थिंग्स। वो उसकी जो आप कभी लाइन और लेंथ देखें तो वो बहुत बैट्समैन को ना इतना रूम नहीं देता। वो मतलब तंग तंग बॉलिंग करता है, व्हिच इज़ सॉर्ट ऑफ सिमिलर टू नसीम। तो मुझे लगता है कि थोड़ी-सी अगर एक हम चेंज कर सकते हैं, अगेन हाइंडसाइट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। अगर ये ना हुई होती तो लोग कह रहे होते कि 2 बैट्समैन ले जाते, सऊद को क्यों नहीं लेके गए? बट मुझे ये लगता है कि अब्दुल्ला चला जाता, सऊद 18 में रहता और ज़मान की जगह फ़हीम अशरफ होता, और फ़हीम अशरफ अगर 15 में होता तो आई थिंक वो एक थोड़ा ना बैलेंस हमारा स्क्वाड का ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता। वो एक वसीम और फ़हीम एक दूसरे का बैकअप भी बन जाते हैं, हसन के साथ रोटेशन भी सही रहती। बट देन अगेन हाइंडसाइट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। इसके अलावा आई थिंक ये तो अब वर्ल्ड कप तो हो चुका है, ठीक है। वर्ल्ड कप की बातें तो अब करने का मतलब हम लोग डिस्कस ही कर सकते हैं कि क्या चीज़ बेहतर हो सकती थी, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक Yep. वी नीड टू लुक अहेड, और लुक अहेड
पीसीबी ने तो वर्ल्ड कप के दौरान ही करना शुरू कर दिया था। आई डोंट नो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस, बट पीसीबी ने एक स्टेटमेंट दे दी थी कि ये टीम बाबर और इंजमाम ने सेलेक्ट की है, आपको शायद याद होगा। और हम्म, पीसीबी जो है बिल्कुल सही कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होंगे वो वर्ल्ड कप के बाद करेगा, वो जो कि एक बहुत ही मेरे ख्याल से थोड़ी सी कम ज़र्फ, फॉर अ लैक ऑफ अ बेटर वर्ड हरकत है कि आप वर्ल्ड कप के दौरान ऐसी प्रेस रिलीज निकाल दें। और उन्होंने फिर वो अपने अल्फाजों पे पूरा उतरे, उन्होंने आते साथ कैप्टनसी, ऑल्दो मतलब मुझे लगता है कि कैप्टनसी से रिमूव करने का मतलब मैं चाहता नहीं था वो रिमूव हो, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी ओवरऑल बाबर की जो बाबर उस पीक पे, अगली पीक जो नजर आ रही है ना सबको, जिस पे सब चाह रहे हैं वो जाए, उस पे जाने के लिए हम्म, आई थिंक वो बहुत जरूरी था कि कैप्टनसी उससे हटाई जाती। और व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द न्यू कैप्टन्स दैट हैव बीन अपॉइंटेड, और साथ ही साथ जो 18 मेंबर स्क्वाड हमारा अनाउंस हुआ है जिसमें हम्म। शान मसूद कैप्टन बन गए हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उसमें साइम अयूब, खुरम शहजाद को इंक्लूड किया है, इसके अलावा फ़हीम अशरफ, मीर हमजा और वसीम जूनियर का कमबैक हुआ है। 7 पेसर्स जा रहे हैं, टॉप 4 शान ने अनाउंस कर दी है कि इट्स गोइंग टू बी Imam Abdullah, Shan, and Babar batting at 4. It seems to be a very well balanced squad in the sense के जो हमें लग रहा था कि डिसयूनिटी आ जाएगी कैप्टनसी टूटने से, वो सोशल मीडिया कंटेंट से उस बुरे तरीके से नजर नहीं आ रही। एटलीस्ट आई थिंक वो बाबर को भी हम्म। पता है, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स व्हाई बाबर गेव अप द कैप्टनसी। तो इस सारी सिचुएशन को इस वक्त कैसे देख रहे हैं आप? ऑस्ट्रेलिया टूर है, डेविड वार्नर का फेवरेट टेस्ट सीरीज है, और उसको फिर से वो पाकिस्तानी चूजे मिल गए हैं थोड़े से, जिसके ऊपर उन्होंने उसने 300 मारना है। तो देखें, लाइक व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू प्ले आउट? okay, so the first thing that you talked about was the whole fiasco that the PCB did during our World Cup. But honestly, it wasn't a surprise. So as soon as Zaka Ashraf was appointed, everyone knew what kind of appointment that was, right? It was more of a political thing than a cricket thing. So whenever there's someone that is being brought in with some political, what do you call it? How should I put it? With some political backing, let's just say that, and then they want to run the show in their own way. So these things are going to happen, and then they're going to say things which are going to get them more hype and more popularity. So whenever Pakistan is losing, you, they took the opportunity of saying, okay, these people selected the team, and so they are going to be responsible, which is fine. You can say that, but maybe you wait till the end of the World Cup, and then whatever was happening in those WhatsApp leaks and all that stuff. The only problem with such things is कि आप अपने international cricket में you're making a joke out of yourself. In Pakistan cricket, everyone expects such things, right? हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, we weren't even surprised, हमें उतना bother भी नहीं किया था इस चीज ने, हमने कहा अच्छा यार, this is something that happens in Pakistan cricket every other year. It's nothing new, something stupid is going to happen eventually again. सो हम तो यूज टू हो गए, बट हाँ एक चीज है कि वर्ल्ड क्रिकेट में इस चीज को जो है ना काफी नेगेटिवली देखा गया, बिकॉज ऑफ द रिस्पेक्ट और द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट बाबर हैज अर्नड ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स एंड हिज टीम एज वेल। ठीक है जी। बहुत अरसे बाद ऐसा नजर आता है कि दुनिया में every other nation or the prominent people in world cricket have respect for your cricketers. काफी पुरानी, काफी अरसे बाद ये चीज वापस आई है। आई थिंक द लास्ट टाइम where we had such kind of star power which dominated world cricket was maybe when we had the Wasim Wakar era, right? तब आपको इज्जत दी जाती थी when your team wanted to go play somewhere, people were excited to watch you. और मे बी अफरीदी के टाइम पे थोड़ा सा अफरीदी सिंगल हैंडेडली हैड दैट स्टार पावर। तो अब मसला ये है कि इन प्लेयर्स के पास they've performed well over the last 4 years. They have that star power as well, and then they can dictate some things as well. एंड ये आपको नजर आ रहा था पिछले एक साल में, अगर आप देखें तो जो प्लेयर्स थे दे वर डिक्टेटिंग हाउ द क्रिकेट बोर्ड इज गोइंग टू रन. Babar was getting his way, Rizwan, in terms of contracts, in terms of the money that they're being paid, which is fair. And ये होना चाहिए, प्लेयर्स के पास थोड़ी पावर होनी चाहिए so that they can use their influence to make things better for themselves. This is completely understandable. But यही चीज जो है ये पीसीबी तोड़ना चाह रहा था जब से उन्होंने देखा है कि यार ओके बाबर इज बिकमिंग टू पावरफुल, ही इज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान,
So that makes him a powerful entity in Pakistan cricket. And इसी तरह हमने contracts negotiate किए. This is something that I've talked about in class as well. Generally, or most clashes that happen, most conflicts that happen are based on money. This is also a money thing as well. We don't realize that, but ये चीज होती है, ये एक aspect होता है cricket का कि आपके the contradictory fact is your cricketers bring in that money as well, so they deserve to be paid. And it shouldn't just be at this level, it should be on lower levels as well. But आप तो अभी you've not even caught up to the poorest cricketing nations in terms of the money that you pay. The money that you pay Babar Azam is lower than the average Bangladeshi cricketer that get the money that the average Bangladeshi cricketer gets. Even now, आप जाके check करें आप बाबर the contract that he has and someone like let's say महमूदुल्लाह तो चलो एक senior cricketer है ना, if there's someone new in Bangladesh as well, वो उनसे ज्यादा कमा रहे हैं अभी. So ये चीजें मैटर करती हैं, प्लेयर्स के लिए भी करती हैं. आप देख लें प्लेयर्स की डिसीजन मेकिंग आपको अब नजर आ रही है. जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, जिनके बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, उन्होंने क्या किया. अभी आप रिसेंटली देख लें, इमाद हैज रिटायर्ड. आमिर तो पहले ही नहीं खेलना चाहता था, राइट. इमाद ने कहा कि जी मैं तो नहीं डोमेस्टिक खेलूंगा, ऑल्दो दे टॉक्ड अबाउट वांटिंग टू प्ले फॉर द क्रिकेट टीम. खैर वो तो चलें छोड़ें, दैट्स अनदर डिस्कशन. बट वो इसलिए रिटायर कर रहे हैं ना कि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स इतने वेल पेड नहीं है. इंडियन क्रिकेटर्स को क्यों फर्क नहीं पड़ता, दुनिया में 10 लीग्स भी हो रही हैं, दे आर नेवर इंक्लाइंड या दे आर नेवर मोटिवेटेड कि हम वहां जाके खेलें, बिकॉज द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे आर बीइंग पेड इन इंडिया is way more than what they can get anywhere else. तो उनको वो पैसा अगर वो इंडिया छोड़ के जाएंगे तो वो पैसा उनको नहीं मिलेगा, which is more than what they can get in any other league. उसमें सर आई थिंक तो ये अगर सारे बात करें तो बोर्ड की ग्रोथ भी आ जाती है कि इंडिया ने और बीसीसीआई ने कितनी तरक्की की हुई है, और बांग्लादेश की अगर इकोनॉमी देखें, मतलब वो फिर सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हो जाती है ना ऊपर एंड से कि हाँ, हाउ बट वेल. बात का मकसद ये है कि मनी इज ऑलवेज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट. जो पीसीबी का बिहेवियर है वो इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस, क्या मनी इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन दिस. एंड देन द पॉलिटिक्स दैट इज हैपनिंग बिहाइंड द डोर्स, वो तो हम वी आर सो यूज्ड टू इट कि वी डोंट इवन लाइक टॉकिंग अबाउट इट, वी एक्सेप्टेड इट. तो एंड देन कमिंग बैक टू द ऑस्ट्रेलिया टूर, यार देखो, आई डोंट थिंक हमारी कोई भी टीम कभी जाके वहां अच्छा खेली है, राइट. इट्स नॉट जस्ट कि ये बच्चे जा रहे हैं. जब बच्चे नहीं भी जा रहे थे, जो हमारे सीनियर क्रिकेटर्स भी जा रहे थे, who really love talking about telling others on how to play, but they never really won anything in Australia. ठीक है जी. आई थिंक आप लास्ट 23 या 24 टेस्ट मैच वहां पे हारे हुए, वो हमारी करंट प्लेयर्स तो नहीं हारे ना, वो तो सारे हमारे पुराने लेजेंड्स जो पिछले पता नहीं 15-20 साल खेले हैं वो हारे हैं. We've never really won in Australia. We've never really done well in Australia. हमने तो कोई I think hardly you can think of 2 or 3 matches where we've been actually competitive, right? So वो तो एक एक्सपेक्टेड बात है. मेरे ख्याल में तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है कि आपका ऑस्ट्रेलिया का टूर है. There is literally no pressure. No one is expecting you to do well. No one is expecting you to win. So whatever you do is going to be a positive. जहां तक डेविड वार्नर की बात है, यार ही हैज ऑलवेज स्कोर्ड वेल अगेंस्ट अस, बट वी ऑलवेज ड्रॉप एन इंपॉर्टेंट कैच एज वेल. सो लेट्स होप वी कैन टेक सम ऑफ आवर कैचेस. और अगर आप लास्ट हमारी टेस्ट सीरीज देखें तो आई डोंट रिमेम्बर अ बेटर फील्डिंग परफॉर्मेंस इन एन एंटायर सीरीज बाय पाकिस्तानी टीम. लाइक आई स्टिल रिमेम्बर उस एक सीरीज में जितने इन्होंने अच्छे कैचेस पकड़ लिए थे, वो मेरे ख्याल में पिछले 4 साल में इन्होंने नहीं पकड़े होंगे. सो let's see what happens. मुश्किल टूर तो obviously है, and it's highly expected कि we lose 3-0. So anything better than a 3-0 is a positive result. So you can only go up. So I don't think there's any pressure in this Australia tour. फिर ये आप 2019 वाले जो जिसमें ट्रिपल 100 की थी उसकी फील्डिंग की बात कर रहे हैं पाकिस्तान की? नहीं, the last series what I'm talking about the Pakistan Sri Lanka series, जो टेस्ट सीरीज हमारी पिछली हुई है. हाँ हाँ, वो तो में उसमें तो थे. the one एक और उसमें हम सर 2-0 फील्डिंग जीते से हैं. मुझे फील्डिंग से मुझे एक चीज याद आ रही है, वो है एक, मतलब वो एक ऐसा प्लेयर आया था, आई थिंक इमरान भट्ट था उसका नाम, या कुछ और. सर वो बंदा, वो आपको पता है उसके डोमेस्टिक में पता नहीं कितने कमाल स्लिप कैच है, वो कैच नहीं छोड़ता. एंड वो इस तरह का है कि मैं उसको शायद, मतलब फैंटेसी वर्ल्ड में, असल में तो नहीं, कि मैं उसको एक 15 के स्क्वाड में रख लूं और फिर मैं उसको सब्स्टिट्यूट हर जगह फील्डिंग कराता रहूं. वो पाकिस्तान का, उसको तारिक सईद ने उसकी सबसे ज्यादा पहले फील्डिंग की तारीफ की थी. तारिक सईद का आपको पता होगा, जो उर्दू कमेंटेटर है. तो हम्म. वो बेसिकली उस सर वो बड़ा कमाल फील्डर है.
सर स्क्वाड की अगर बात करें तो इन्होंने मतलब आई थिंक 18 मेंबर स्क्वाड तो है, और पन इंटेंडेड साथ एक 17 मेंबर मैनेजमेंट का भी स्क्वाड जा रहा है। दो स्क्वाड जा रहे हैं पाकिस्तान के, जिसमें मुझे तो मेरी तो समझ से बाहर है। मतलब नवीद अकरम चीमा बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, जाहिर है, मतलब बड़ी एज के आई हैं। डोंट आई डोंट हम थिंक इस बात की रिस्पेक्ट है इन लोगों की बात चले। ये देखें, मैं वो तो एक से whatever that crowd that they're taking with them, that posse of idiots, let's be very honest, अगर आप उनमें कुछ नाम देखें तो you will be like कि यार ये मतलब सर कि अपने आप को देखिए, बेवकूफ दिखाने वाली बात है। बट यार ये तो आई थिंक पार्ट है हमारी क्रिकेट का, इसमें तो कुछ सर सरप्राइजिंग है पार्ट ही नहीं, दिस समथिंग। पार्ट है, लेकिन देखिए 13 14 तो लोग जाते हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। उन्होंने वो बेसिकली रिलीज कर दी है एक स्टेटमेंट कि इतने लोग जा रहे हैं, लेकिन 13 14 तो जाते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। अब बात पता है क्या है? क्या नजर पता है क्या आ रहा है कि आप जो हमारे ऑनरेबल चेयरमैन है, उन्होंने नवीद अकरम चीमा साहब को अपॉइंट भी करना था, लेकिन क्योंकि शायद उनकी थोड़ी एज ज्यादा हो गई है अब, और 2013 में थी, उनकी एनर्जी नहीं रही, तो उनको अपॉइंट भी करना था, लेकिन उनको फिर साथ कोई असिस्टेंट भी चाहिए था। इसीलिए फॉर्मर टीम मैनेजर जो है वो अपॉइंट हो गए हैं एज मंसूर राना। मन, मंसूर राना जो हैं वो बेसिकली वो अपॉइंट हो गए हैं साथ। इसके बाद सर अगर बात करते हैं हारिस रऊफ की, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि उसकी क्या उसकी सिलेक्शन के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है कि वो ही एब्सटेन्ड फ्रॉम सिलेक्टिंग? हेलो। जी हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? अ, जी जी, बस कंटिन्यू करते हैं। मैं वो ओके। रिकॉर्डिंग कंटिन्यू है, वो फिर मैं उसको कट कर लूंगा बीच में से। हाँ, यू कैन एडिट इट ऑब्वियसली। हाँ, तो हम्म। सर एक मुझे ये बताएं कि हारिस रऊफ इज हैज बेसिकली abstained फ्रॉम प्लेइंग द टेस्ट टूर, तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? हम्म। यार, आई गेस फेयर इनफ, ऑब्वियसली वी वुड लाइक हिम टू प्ले। एक तो ऑब्वियसली उसका ऑस्ट्रेलिया में एक्सपीरियंस है, ठीक है, ही इज बीन पार्ट ऑफ द बीबीएल। उसका ऑब्वियसली द कॉन्फिडेंस दैट ही हैज इन ऑस्ट्रेलिया, इवन इन द वर्ल्ड कप ही डिड रियली वेल। एंड आई थॉट कि ही माइट गो ऑन दिस टूर इसी वजह से, बिकॉज दैट वुड बी द आइडियल प्लेस फॉर हिम टू रिगेन हिज फॉर्म एंड डू वेल। बट यार, आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा अगर क्रिकेटर को ये लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा खेल रहा है और वो थका हुआ है एंड ही वांट्स टू रेस्ट, so I think that's fine, that's fair enough. एक And मिनट if he सर। feels that the test format is not good for him, या if it's not the format that he wants to play, देखो ना, हर क्रिकेटर का मकसद क्रिकेट का देखें पाकिस्तान के लिए खेलना तो है, that's fair enough, but then they want to earn money as well, ये आपको समझना पड़ेगा ये एस्पेक्ट। तो सर वो आई अपना करियर भी अंडरस्टैंड, लंबा करना चाहेंगे। हम्म। आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, और सारी बातें ठीक हैं, ठीक है, बट देखें
उसको सर्किट में आए हुए को 3-4 साल हो गए हैं, ठीक है? और मेरी हम्म। ये जानना है कि वर्कलोड बिल्कुल मैनेज होना चाहिए, लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया का टूर ही वर्कलोड मैनेज करने के लिए उनको मिल रहा है, नज़र आ रहा है? जो कि एक नहीं वाहिद देखो। एक ऐसी देखें जो ऐसी जगह है जहाँ पे आपको फास्ट बॉलर्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है? सबको पता है बात। हम्म। पिछले वाले टूर पे भी हम वहाब और आमिर बैकआउट कर गए थे। और मतलब श्रीलंका का टूर हो ना, तो फिर भी आपको समझ आए कि चलो वहाँ पे आप 2 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर के साथ खेल सकते हो, तो चलो शाहीन के साथ मतलब आपके पास कोई और होगा तो मतलब समझ आती है श्रीलंका, इवन तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो वर्कलोड मैनेज करने के लिए और खास तौर पे जब आपने एक ही टेस्ट खेला हो, आप इतने कोई वो मायानाज खिलाड़ी नहीं है, मतलब है रिस्पेक्टेबल है बट इतना रेनाउंड तो नहीं है। तो वो मुझे लग थोड़ी बॉदर करती है चीज। नहीं देखो, जो आपका पर्सपेक्टिव है ना वो इस चीज पे बेस्ड है कि यार he should be playing for Pakistan because Pakistan needs him to play, right? But what we as people or as fans do not understand is that being a fast bowler is extremely difficult. Number one, being having the ability to bowl at 145 consistently, and he is one of those people who always does that. उसकी पेस नहीं गिरती, शाहीन की गिर जाएगी, नसीम की गिर जाएगी, others will reduce their pace maybe to help them in their spell, but he is someone that will always be bowling at 145 plus, right? एंड देन अगर आप देखो तो पिछले 2 या 3 साल से ये सब इंक्लूडिंग शाहीन, नसीम, एवरीवन, दे हैव प्लेड अ लॉट ऑफ हाई इंटेंसिटी क्रिकेट। टेस्ट मैचेस की मैं बात नहीं कर रहा, वन डेज की मैं बात नहीं कर रहा, T20 क्रिकेट इज एक्सट्रीमली हाई इंटेंसिटी। जो T20 के 4 ओवर हैं, दे टेक अ टोल ऑन यू दैट माइट बी इक्विवेलेंट टू व्हाट a 10 ओवर स्पेल वुड फील लाइक, बिकॉज उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, टाइम कम है, जल्दी जल्दी क्रिकेट होती है। लोग ये बात नहीं समझते कि T20 भी बॉडी पे बहुत टैक्सिंग होती है। इफ यू एवर लिसन टू ex cricketers who have some experience of playing all formats, तो वो आपको यही बताएंगे कि यार T20 बॉलिंग इज नॉट इजी, ठीक है? और स्पेशली जो गेम बन चुकी है आजकल। और अब आप देख लें कि उसका लास्ट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड कप, ही हैड एन ऑफुल वर्ल्ड कप, ठीक है? एंड आई थिंक इट्स अ कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल डिसीजन। अगर वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, ठीक, तो इसमें यार वी शुड नेवर बी लाइक, अगर हमें तो उल्टा ऐसा डिसीजन कभी रिस्पेक्ट भी कर देना चाहिए। हम लोग ही क्रिटिसाइज करते हैं इन लोगों को, जब ये ज्यादा क्रिकेट खेल के या तो इंजर हो जाते हैं, राइट? या ये वो फॉर्मेट खेलते हैं जिसके लिए वो सूटेड नहीं है। फिर हम फिर लोग ही होते हैं कि यार इनको अकल नहीं है कि हारिस राउफ, अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स अज्यूम हारिस राउफ वेंट ऑन दिस टेस्ट सीरीज, राइट? पहला मैच वो खेलता है, वो नहीं आउट करता ज्यादा, दो एक या दो आउट है, ही इज गोइंग टू गो एट 6 7 8 रन्स एन ओवर। दीज सेम पीपल हु आर क्रिटिसाइजिंग हिम दैट ही इज नॉट प्लेइंग वुड क्रिटिसाइज द पीपल फॉर सिलेक्टिंग हिम बिकॉज ही इज नॉट अ टेस्ट फॉर्मेट बॉलर। सही, ऐसा ही है, बिल्कुल सही। बिल्कुल ऐसे ऐसे। ही और ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज है जो हमने देखी नहीं है। दिस इज समथिंग दैट वी हैव सीन कि यार ये होती है, जब भी कोई डिसीजन नहीं पे ऑफ करता, एवरीवन रन्स टू ब्लेम द पर्सन हु हैज मेड दैट डिसीजन। तो बिल्कुल हारिस का देखो, इफ ही डजंट वांट टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, ऐसा बहुत दुनिया में क्रिकेटर्स करते हैं, कोई ऐसी सरप्राइजिंग बात नहीं है, और आपको उस बॉलर का डिसीजन रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। क्रिकेटर्स का देखो, हम लोग समझते हैं, आप स्पोर्ट्स में, स्पेशली स्पोर्ट्समैन पे ये बात अप्लाई करती है। हम लोग तो चलो नौकरी पेशा लोग हैं मोस्टली, या बिजनेस ओनर्स हैं, राइट? विद टाइम आवर इनकम इज गोइंग टू ग्रो, दैट इज आवर assumption, राइट? बट फॉर अ स्पोर्ट्समैन और फॉर अ क्रिकेटर इन आवर कंट्री, जो उसके पास लिमिटेड टाइम पीरियड है 10 15 साल का, उसने अपनी जिंदगी के पैसे मेजोरिटी ने वहीं से कमाने हैं, तो इन्वेस्ट उनकी करना। प्रायोरिटीज डिफरेंट होंगी, ठीक है? और देखो यार, हम लोग सिटिंग हेयर टॉकिंग अबाउट दिस, वी आर प्रिविलेज्ड, द काइंड ऑफ बैकग्राउंड दैट योर क्रिकेटर्स हैव, राइट? फॉर देम मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट शुड एंड इट शुड बी, बिकॉज जिस तरह के हालात से वो लोग आते हैं, जिस तरह की मेहनत से वो लोग आते हैं, वो डिजर्व करते हैं। सही और बात है। हम लोग ये बात नहीं समझते, हम लोगों को क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान आता है, अपनी प्रिविलेज सीट से लोगों के बारे सही में बात बातें करना, ये करना वो करना। बट मैं आई वुड ऑलवेज रिस्पेक्ट अ क्रिकेटर जो अपने लिए एक डिसीजन लेता है जिससे आपका भी फायदा हो रहा है। अगर वो नहीं खेल रहा टेस्ट फॉर्मेट, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर समवन एल्स, मे बी ही डजंट फील ही इज अ टेस्ट बॉलर, राइट? वो अभी आके ये सीरीज खेल के इसमें बुरा करके पूरी जिंदगी के लिए टेस्ट क्रिकेट से ऑफ हो जाए,
उससे अच्छा है कि वो ये टेस्ट क्रिकेट वाली ये सीरीज ना खेले, गिव हिम सही टाइम, या बात। वो ऐसा ऐसी इंजरी हो जाए जिसकी वजह से वो अगले 8 महीने के लिए बाहर हो जाए। आपका T20 हम्म। वर्ल्ड कप आ रहा है, आपकी सारी टीम बनी ही T20 क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक है? सही बात। तो अब आप उनको वो चीज करने का तो पूरा मौका दें ना। आपने जिस हाँ। बेसिस पे उनकी टीम बनाई है, ये सारे T20 प्लेयर्स हैं इनमें से मेजोरिटी, अगर आप देखें तो फिर आप सर उनको यही उस तो चीज का मसला मौका है। दें ना, टू उससे पहले टी उनको इंजर ट्वेंटी करके ना बैठ जाए। T20 क्रिकेट खेल खेल के हमें फिर हमेशा ही पुराने क्रिकेटर्स भी कहते हैं कि लॉन्गर फॉर्मेट से छोटे फॉर्मेट पे ट्रांजिशन इज स्मूदर। अगर आप हम्म। सऊद को खिलाएंगे T20 तो वो शायद अच्छा खेल लेगा, लेकिन अब वही इशू आता है ना कि हमारी T20 सेंट्रिक टीम है, वो इस वजह से टेस्ट में उस तरह से परफॉर्म ही नहीं कर पाती, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट इज टेस्ट क्रिकेट फॉर अ रीजन। और मतलब हम्म। मेरी तो शान के साथ बायस है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं क्रिकेटर गलती से बन जाता ना, तो हम्म। मेरी ना मतलब मैं बाबर आजम तो कभी ना बनता लेकिन मेरी ना शान मसूद की तरह टॉप स्टार्ट करियर होता ये। और क्योंकि बैकग्राउंड भी थोड़ी तो, एजुकेटेड होती तो अंग्रेजी अच्छा बोल लेता, और हम्म। क्रिटिसिज्म भी मिल रहा होता मुझे, जो कि मुझे लग रहा है कि मैं क्रिकेट दोबारा शुरू कर दूं, शायद मैं 8 साल तक मान ही जाऊं इस तरह कुछ ना कुछ। देखो, बाबर आजम तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं बन सकता, दैट काइंड ऑफ स्पेशल टैलेंट यू कांट रियली, you just lucky to have it, and obviously then a lot of hard work goes into that developing that talent, but not everyone can be as talented as him, ठीक है? And you rarely see someone like him, तो वो तो एक सेपरेट डिस्कशन है। बट जहां तक शान की एज अ कैप्टन बात है, आई थिंक के देखें, एज फार एज him being part of the team and him having his spot secured in the team, yes, that is a discussion to be had, बट उसकी अपॉइंटमेंट के साथ कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। एक चीज उसकी जो मुझे सबसे अच्छी लगती है कि ही फॉलोज हिज वर्ड्स, जिस चीज में वो जो वो बात करता है, ही ट्रूली बिलीव्स इन इट, एंड दैट इज समथिंग यू कैन सी इन हिज बैटिंग। वो एग्रेसिव अप्रोच की बात करता है, आप उसकी कोई भी पिछले 2 साल की क्रिकेट उठा के देख लें, ही इज इम्प्रूव्ड इमेंसली इन T20। आप उसकी टेस्ट क्रिकेट देख लें, वो ठीक है बड़े स्कोर नहीं कर रहा, 50 भी नहीं कर रहा, लेकिन वो जितने भी 30-40 कर रहा है वो इंटेंट से कर रहा है, एट अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट। वो जो इवन फैस्ट बॉल वाली चीज है वो नजर आ रही है। वही ना, एग्जैक्टली सो वो उसकी ये चीज जरूरी है। और वो उसकी रिसेंट इंटरव्यूज भी मैं सुन रहा था, उसमें भी वो चीज क्लियरली पता चल रही कॉन्फिडेंट थी है। कि कॉन्फिडेंट तो है ऑब्वियसली, वो तो एक चीज है, बट ही इज टॉकिंग अबाउट हिज बिलीफ। वो कह रहे जी जो हमारे स्टाइल ऑफ क्रिकेट पे फॉल करता होगा हम उसको प्रेफरेंस देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान टीम में आके खेलना चाहते हैं तो आपको हमारी स्टाइल ऑफ क्रिकेट अडेप्ट करनी पड़ेगी। ये सारे वो डोमेस्टिक प्लेयर्स को मैसेज दे रहा था। बिकॉज अभी थोड़ा क्रिटिसिज्म मैंने पढ़ा था, हो रहा था कि अबू वो समथिंग अबू हुरैरा या पता नहीं क्या नाम है हमारे क्रिकेटर का, he's a very good batsman apparently, he's been doing really well in domestic cricket, and he wasn't selected and Sam Ayub was, ठीक सर है? वो मोहम्मद तो हुरैरा, शोएब हाँ, मलिक का मोहम्मद वो हुरैरा, ठीक भतीजा। है। तो वो नहीं सिलेक्ट हुआ, साइम अयूब सिलेक्ट हुआ, राइट? एंड साइम अयूब के भी इतने बड़े स्कोर नहीं है, ही इज रिसेंटली डन वेल इन द लास्ट फ्यू टूर्नामेंट, CPL भी वो अच्छा खेला। बट इससे एक चीज क्लियर होती है कि यार कप्तान जिस चीज में बिलीव करता है वो उस चीज को प्रायोरिटाइज भी कर रहा है, ठीक है? दैट वुड ऑल्सो मीन कि उसके इर्द गिर्द जो प्लेयर्स हैं उनको भी उसी तरह की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, बिकॉज ही इज ऑलरेडी लीडिंग बाय एग्जांपल। सो वो एक पॉजिटिव चीज है इसकी कप्तानी में, कि ये नहीं है कि कप्तान बाहर बैठ के कुछ कर रहा है और मैच में जाके कुछ और कर रहा है। वो जिस चीज में बिलीव करता है, दे गोइंग टू ट्राई दैट, एंड इफ इट वर्क्स आउट देन तब उसकी तारीफ करेंगे, एंड इफ इट डजंट, सो आप फरवरी तक वेट कर लें, इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस के बाद PCB में सब कुछ चेंज हो जाएगा, मोस्ट लाइकली कप्तान भी चेंज हो जाएगा। सो इट्स वो जो 4-5 महीने की बात है, मैं तो लोगों को ये कह रहा हूँ कि एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज बिफोर द वर्ल्ड कप, सो बी पेशेंट इफ यू डू नॉट लाइक द फॉर्मेट करंट कम सिस्टम। से कम जब वो 10 साल बाद बैठेगा तो वो फॉर्मेट टेस्ट कैप्टन तो खिलाया जाएगा ना, तो और क्या चाहिए। नहीं यार देखो, ठीक है ना, आई मैं जो लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं ना उसका, आई अंडरस्टैंड दैट एंड दैट्स फेयर, दैट मैं ही नहीं कर। क्रिटिसिज्म इज एंटायरली फेयर, ही डजंट डिजर्व टू बी द कैप्टन ऑफ द टीम, राइट? बट अगर उसका एक विजन है और वो देखो जरूरी नहीं है कि कप्तान आपका बेस्ट प्लेयर हो, ठीक है? ये एक बहुत बड़ा ना मिसकंसेप्शन होता है कि कैप्टन सर आप स्पेशली ये सब बात तो कॉन्टिनेंट फिर टीम में, बहुत सब ज्यादा कॉन्टिनेंट टीम में डिस्प्यूट ना हो बहुत गई है। कॉमन बात है कि यार जो सबसे अच्छा खेल रहा है ना उसको कैप्टन बना दो। इवन व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, हु द बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम वाज जनरली द कैप्टन, ठीक है? तो वो हम्म। एक कॉन्सेप्ट है, बट द बेस्ट कैप्टन इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट प्लेयर।
And in Shan's case, he might be a very good captain. And his captaincy record, if you see, it's actually quite good. मुल्तान में भी उसने जो थोड़ा सा कप्तानी की, उसने अच्छी कप्तानी की. Eventually रिजवान took over from him. उससे उसके अलावा जहाँ वो जाके काउंटी खेलता है, उसको वहां पे भी उसकी कप्तानी दी गई. हम्म। वो किसी वजह से उसको कप्तानी दे रहे हैं ना, तो वो उनके उसको पास दी तो कोई. गई है, लेकिन उसका एक क्रिटिसिज्म मिलता है। अब मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं तो चाहता हूँ कि वो परफॉर्म करे, बट वो इतना परफॉर्म नहीं कर सका उस कैप्टनसी वाले स्टैंड में। वो आई थिंक उनका यॉर्कशायर का एक यॉर्कशायर ही है आई थिंक। उनको उनका स्कैंडल चल रहा था, तो उसको तो मतलब एक सर्टेन ग्रुप ऑफ लोगों ने कहा था कि ये उनका वो था, जो कोटा कैप्टन कहते हैं ना, रेसिज्म कोटा हम्म. कैप्टन, ताकि उनके ऊपर से वो लेबल हटे। उनका कोई इस तरह का केक है। यार चलो, वो वाली इवन स्टोरी इफ है दैट कि इज ट्रू, देखो, इवन इफ हाँ दैट इज ट्रू, आई एम श्योर ही वाजंट द ओनली ऑप्शन, राइट? हाँ, आई एग्री। लेकिन वो Right. So आई थिंक he आई was the वुड best option out of some people, right? At least. हाँ So कुछ हाँ तो होगा सही। जो उसको select किया गया ना. And if you listen to him in terms of the kind of cricket he wants to play and the way he talks, he is impressive in that. But अब उसको थोड़े runs करने पड़ेंगे उस चीज को back करने के लिए. If he scores some runs and we get one, even a single good result in that series, I think हाँ that's a very positive step for him as a आई captain थिंक as well. अच्छी इस बात शान यह की है करियर कि में यार उसके पास जो इर्द गिर्द टीम में लोग हैं वो ऐसे नहीं हैं जो चाहे कि वो फेल करे, हाँ राइट? सही बात है। इट्स सरफराज अ गुड सरफराज इज द वाइब्स वाली सीनियर टीम। इन दैट टीम. सरफराज की ऐसी नेचर नहीं है. बाबर इज द सीनियर इन दैट टीम. बाबर की ऐसी नेचर नहीं है. रिजवान इज द सीनियर इन दैट टीम. उसकी भी ऐसी नेचर नहीं है, सही राइट? बात है। सो जो सीनियर्स हैं वो ऐसे हैं जिन पे वो रिलाय कर सकता है. सो आई थिंक इट्स अ इमाम गुड की हो स्टेप. सकती है, लेकिन इमाम इतना अभी वो नहीं है। नहीं, इमाम भी नहीं. देखो, इमाम का भी देखो, ही इज बीन वेरी क्लियर. द गुड थिंग इज कि वो जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी में आता है तो वो बहुत क्लैरिटी उससे पूछा गया कि जी आप इमाम भी है, अब्दुल्ला भी है, साइम भी है, ओपनिंग स्पॉट को आप चेंज करेंगे? उसने कहा नहीं भाई, आई एम गोइंग टू. देखें, उसने तो बात ही नहीं की ना. ही स्मार्ट. ही सेड कि जी बाबर आजम इज आवर नंबर 4, राइट? हाँ ही इज आवर बेस्ट प्लेयर. हमने पूरी टीम बनानी ही उसके इर्द गिर्द है, सही right? बात। This is exactly what he said, and that is the right approach. You build your team around your best players. So Babar is going to bat at 4. Shan will automatically bat at 3 with Abdullah and Imam opening. Saim will be the backup. And that is पे साइम को एक्सपीरियंस मिलेगा. वो जो ऑस्ट्रेलिया टूर पे प्री टूर मैच आई थिंक प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ, वो भी साइम खेलेगा ऑब्वियसली. तो आई थिंक दैट्स अ गुड स्टेप. और प्लस वो साइम को ऑस्ट्रेलिया में देखना चाहते हैं, विकेट उस तरह की विकेटों पे. आगे जाके ऑस्ट्रेलिया में बड़े मैचेस भी आएंगे, सो फिर वो टेस्ट के ऑस्ट्रेलिया अलावा भी ना भी क्रिकेट खेले ना, खेलेंगे. तो एक यंग लड़के के लिए टीम के साथ ट्रैवल करना ही शुरू में बहुत बड़ी चीज होती है। उससे ही हाँ बहुत हाँ, सीख लेते हैं ऑब्वियसली मतलब। दैट ऑब्वियसली इट हेल्प्स. टीम इट हेल्प्स. एंड अगर टीम आप के वो साथ देख रहे हैं तो प्रैक्टिस। the team generally does look in good spirit as well. I saw some videos of their training and Sarfraz doing stupid things and Babar doing fun things. So they're having a good time as well. So the camp looks like they're having a good time. So I think ये सारे positive signs भी हैं. Obviously there are going to be negatives whenever you perform that badly after a World Cup. Changes होते हैं. ये सब बहुत natural चीजें हैं और बहुत understandable चीजें हैं. ठीक है या गलत है, that is another debate, but they are not surprising in any way. आई एग्री सर। लेट्स होप कि पाकिस्तान डज वेल इन ऑस्ट्रेलिया। लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे इस हाँ एपिसोड हाँ में वो ये है कि पीएसएल ड्राफ्ट की सर इस दफ़ा बहुत हाइप रही है। ठीक है, आई थिंक जो ट्विटर पे मैं देख रहा होता हूँ, इतनी मतलब हमारे जो टीम्स पीएसएल टीम्स की सोशल मीडिया गेम भी बड़ी उठी हुई है। हाँ और हाँ. मतलब इट इज बीइंग रिगार्डेड एज द बेस्ट एवर ट्रेड विंडो इन पीएसएल हिस्ट्री बाय अली तरीन। और बड़े बड़े चांसेस लग रहे थे पहले पेशावर के टू बैग नसीम, और फिर मुल्तान के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस थे। मतलब उन्होंने तो कुछ हिंट्स भी ड्रॉप कर दी थी। और फिर रेहान उल हक ने ऐसी गेम चुकी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की है, और वो मतलब छुपके से आया है और उसने मतलब सॉर्ट ऑफ नसीम को ले गया वो। और उसके बाद और बड़ी ट्रेड्स हुई हैं। इफ्तिखार हैज लेफ्ट क्वेटा फॉर मुल्तान एंड दे हैव ट्रेडेड राइली रूसो, और हसन अली और इमाद वसीम की ट्रेड होगी। तो हाउ डू यू सी, मतलब बहुत ज्यादा शेकअप नजर आ रहा होता हुआ। आमिर कुड पॉसिबली गो टू क्वेटा, Shan could possibly go to Karachi Kings because Haider Azhar has shifted from Multan to Karachi, and he is sort of bringing a complete revolution to the Karachi Kings mindset and the team and everything. इसी वजह से इमाद भी ट्रेड हुआ है। तो काफी शेकअप नजर आ रहा है। क्या लग रहा है आपको कि हाउ विल दिस ट्रेड विंडो अफेक्ट पीएसएल 9?
यार अभी तक जितना मैंने पढ़ा और देखा है काफी इंटरेस्टिंग ट्रेड विंडो है, आई एग्री। टीम्स की आई थिंक फिलोसफीज चेंज होती हुई नजर आ रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, लाइक द बिगेस्ट एग्जांपल इज कराची। उन्होंने जितना भी गन था जो उन्होंने जमा किया हुआ था ओवर द लास्ट 5 years, पीपल लाइक आमिर इमाद, ठीक है, इंडिविजुअलिस्टिक प्लेयर्स थे ना ये, ठीक है। सो उन्होंने दे टेकन दैट अप्रोच अवे। आई थिंक मुझे नहीं पता था कि हैदर मूव फ्रॉम मुल्तान टू कराची, बट नाउ वट एवर कराची इज डूइंग इज अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज द प्रीवियस मैनेजमेंट जो थी वो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच से चल रही थी, एंड देन with Imad and Amir having their own agenda generally as well. So वो Karachi became the, what do you call it? What would be a good example? But basically, Karachi became the villain team in PSL. Basically, no one wanted Karachi to win, right? Because they had those personalities, right? They thought that maybe those personalities can like help them, you know, it's a form of motivation for those players as well. When people hate on them, they want to do well. So they thought maybe in individualistic approach से हम tournament जीत जाएंगे. Yeah, we will start doing well, but that did not work. ठीक है, इमाद डिड एक्सट्रीमली वेल इन द लास्ट पीएसएल अगर आपको याद हो, बट कराची बेरली वन अ गेम, राइट? सो वो अप्रोच 2 साल उनकी फेल हुई आफ्टर बाबर लेफ्ट। इसमें अब जो इंटरेस्टिंग वो है कि नसीम ऑब्वियसली इज अ हॉट प्रॉपर्टी। उसकी वजह ये है कि आपको नजर आया है इतना बड़ा वर्ल्ड कप में कि जब नसीम टीम से गया है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कितना बड़ा है। तो दैट बेसिकली टेल्स यू कि हाउ मच ऑफ एन इम्पैक्ट ही कैन हैव ऑन एनी पर्टिकुलर टीम, राइट? क्योंकि अगर आप उसको इंटरनेशनल टीम से निकाल रहे हो, इंटरनेशनल टीम एकदम फ्रॉम बीइंग अ टॉप 3 4 टीम गोज टू लाइक not even a top 6 team. So in a PSL team, he could be the difference between a team winning the tournament and a team ending in the last position. He's that kind of player. If he has a good tournament, वो single handedly आपकी टीम को लेके जा सकता है. So ऐसे प्लेयर्स की ऑब्वियसली हमेशा ज्यादा वैल्यू होती है। और मैंने काफी इंटरेस्टिंग ट्रेड सुनी थी उसके लिए ऑफर की गई। एट वन टाइम साइम अयूब एंड मे बी वन अदर पेशावर जल्मी प्लेयर वाज बीइंग ऑफर्ड फॉर नसीम। और सारी टीमों को ये चीज रियलाइज हो गई है कि आप टूर्नामेंट जो है ना, मैचेस आप बैटिंग की बेसिस पे जीत जाओगे, एक आध बैट्समैन आपको मैच जिता देता है, बट टूर्नामेंट्स हमेशा हमेशा अच्छे बॉलिंग अटैक से जीते जाते हैं। तो टीम्स के लिए जो बड़े बॉलर्स हैं, स्पेशली फास्ट बॉलर्स हो गए या बहुत हाई क्वालिटी स्पिनर हो गए, अभी तो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई है नहीं ना, इसलिए आप स्पिनर्स के आसपास हाइप उस तरह नहीं देख रहे। बट कोई टॉप क्वालिटी आज आप कुछ इंडियन स्पिनर्स ड्राफ्ट में डाल दो, दे वुड गो फॉर द हाईएस्ट अमाउंट। वाई? बिकॉज देर क्वालिटी स्पिनर्स। सो क्वालिटी बॉलर की हमेशा वैल्यू ज्यादा होती है और क्वालिटी फास्ट बॉलर की उससे भी स्पिनर से भी ज्यादा वैल्यू होती है। तो वो तो इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल। आई लाइक अगर शान अगर कराची जाएगा इट वुड मेक सेंस बिकॉज शान वुड वांट टू बी द कैप्टन एज वेल। शान कांट बी द कैप्टन इन मुल्तान, ठीक है। तो आपका टेस्ट कैप्टन जो है वो ही वुड वांट के, क्योंकि अभी तक ओडीआई कैप्टनसी तो अनाउंस हुई नहीं, राइट? सो ही वुड वांट के हिज नेम इज इन द हैट एंड ही कैन डू दैट बाय विनिंग द पीएसएल। And then if Shaheen doesn't have a good tournament for Pakistan the next World Cup, and if Shahan is doing well, you never know. Shahan could be your all format captain even. तो पाकिस्तान है, कुछ पता नहीं होता यार, राइट? सो उस लिहाज से तो what I would find interesting in this PSL is the new foreign players that we have. I heard Quinton de Kock had his name in the PSL draft this year. His name is going to be in the draft. मैंने ये पढ़ा था कहीं पे। तो डिकॉक अगर और कुछ ऐसे, मैक्सवेल का पढ़ा था मैंने भी, बट वो इतनी कोई कॉन्क्रीट रिपोर्ट अभी नहीं है। या सो कॉन्क्रीट अभी रिपोर्ट्स। जब आएगा ड्राफ्ट तब पता चलेगा। बट अगर इस तरह के हम्म। कुछ प्लेयर्स इंक्लूड किए जाते हैं तो आई थिंक दैट हम्म। वुड बी मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज पीएसएल बहुत अच्छी लीग होगी, बट हम्म। हमने हाईएस्ट कैलिबर ऑफ प्लेयर्स को पीएसएल में कंसिस्टेंटली खेलते हुए नहीं देखा। लाइक सही द बात है। वर्ल्ड क्लास, लाइक वी आई हैड होप डेविड सुपरस्टार। वार्नर कम्स एज वेल, क्योंकि बाय दैट उस वक्त तक ही वुड हैव रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट, तो मतलब दैट कुड आल्सो बी अ पॉसिबिलिटी। उम्मीद तो होनी चाहिए कि, एंड स्पेशली आई थिंक मोर वी विल, आई थिंक इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स जो हम एक चीज देखेंगे जो मुझे रिसेंटली एक चीज फील हुई है, we will see more Australian and English players playing in the PSL. And I या। think another reason for that is the good relation our team, international team has. The players, या। they have respect and they have good relationship and friendships with each other. मुझे ये फील हम्म। हुआ है कि in the last 3 4 years
Pakistani cricketers की respect within Australian cricketers and English cricketers, I've seen it rise a lot. यार पहले इस इसका तरह नहीं था. मेन रीजन बाबर आजम और शाहीन और रिजवान है मेरे ख्याल से। उनकी नहीं, एक परफॉर्मेंसेस, खाली टीम लेकिन प्लेयर्स द की मैं कहूंगा. परफॉर्मेंसेस आई थिंक ओवरऑल आपका इंटरनेशनल क्रिकेट पे इम्पैक्ट 2 साल आपका, आई थिंक हिस्ट्री में पहली बार ऐसे हुआ था. आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर 2 consecutive years was a पाकिस्तानी क्रिकेटर. मैं तो बहुत खुश था सर। राइट. एक साल बाबर आजम है, एक साल शाहीन शाह अफरीदी. राइट. सो ये चीजें मैटर करती हैं बिकॉज बहुत दिस मैटर। सेंड्स आउट अ मैसेज कि यू हैव वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स एंड देन एवरीवन वांट्स टू सी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स प्ले. इंडिया सही को बात। इतने साल क्यों कभी फील नहीं हुआ कि आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स होने चाहिए, क्योंकि आपके पास उतना स्टारडम वाले प्लेयर्स नहीं थे. सही बात। अब वो फील होती है बात. ठीक है. आप बाबर की फॉलोइंग इन इंडिया देख लें. Right? It's that it's of maybe it's not the same level as Afridi in India, but it's in that area at least. इसके अलावा कोई पहले नहीं थे लोग. शाहीन इज इन दैट एरिया नाउ एट लीस्ट. राइट. सो यू हैव न्यू सुपरस्टार्स. और इसलिए आई फील कि इन सुपरस्टार्स को ग्रो करने के लिए हमें हेल्प करने की जरूरत है एज द क्रिकेट बोर्ड. Because if they grow, they will bring in more money. More money means that everything is going to get better eventually, right? With more money, things tend to get better. अब वो पैसे जाते किसके पास है वो एक अलग बात है. बट पैसा होगा तो गलत या सही चॉइस होगी ना. अगर पैसा होगा ही नहीं तो देयर इज नो चॉइस. सो इसलिए इन प्लेयर्स की ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से. जी आई थिंक सर यू हैव वेरी राइटली पॉइंटेड आउट जो सारे बीपीएसएल के अराउंड हाइप चल रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे। आई होप टू सी यू सून One more एंड thing I would want to add is the good interesting thing about this PSL is there is a lot of interesting captains this time. So if Shan goes to Karachi, Shan is going to be the captain. Rizwan is captain in Multan. Peshawar में captain बाबर है. लाहौर में शाहीन है. And Quetta में most likely सरफराज है. So these are like एंड 4 or 5 players that शदाब। could be the captain of your team. या Hmm? तो शदाब आई बोल रहे थिंक हैं। उस लिहाज से भी. हाँ, एंड इस्लामाबाद में शदाब है. राइट. सो या शदाब हैज अ पॉइंट टू प्रूव. उसकी परफॉर्मेंसेस डाउन है. बट अगर आप ये पिछला एक साल निकाल दें तो शदाब वाज टिप्ड टू बी द नेक्स्ट T20 कैप्टन. वही राइट. सर, T20 सो नहीं, ही आपके छह वुड हैव के छह बिकम द टीमों ओडीआई के कैप्टन एज कप्तान वेल। ऐसे. ये बेस्ट चीज ये है कि आपके छह के छह टीमों के कप्तान ऐसे हैं. एक्सक्लूडिंग आई वुड से सरफराज को चलो निकाल दो क्योंकि उसका करियर एंड या होने के आसपास है. 5 ऐसे हम्म, कप्तान हैं छह में से. और ऐसे क्वेटा जिन्होंने का बनना कप्तान अभी चेंज हो भी सकता है. यू नेवर नो. राइट. ना मे बी नवाज। मे बी दे मेक आमिर कैप्टन. राइट. यू नेवर नो. ठीक है. सो कोई पता नहीं. यू नेवर. ऐसी ही चीजें होती हैं. इट्स honestly if Amir goes to Quetta and I am the decision maker, I would make him the captain because I that is the only way I would get the best out of him. मैं as a team owner बात कर रहा हूँ, as a cricket fan नहीं बात कर रहा. फिर वो फिर बेस्ट ठीक है. आउट ऑफ हिम ही आएगा, बेस्ट आउट ऑफ टीम नहीं आएगा। टीम ओनर भी आप अगर यार वो देखें ना। बट यू नीड टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर प्लेयर्स. राइट. मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इट वुडंट बी द मोस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड डिसीजन दैट यू कुड सी. ऐसी चीजें होती हैं हमारी क्रिकेट में. तुम यकीन मानो, तुम सबर करो, जाने दो उसको क्वेटा, तुम्हें नजर आएगा वो कप्तानी करता हुआ. ठीक है. तो 5 ऐसे कप्तान हैं जो पाकिस्तान की कप्तानी करना चाहते हैं या कर सकते हैं. राइट. सो वो बहुत हम्म, इंटरेस्टिंग होगा मेरे हिसाब से फॉर दिस ईयर्स PSL. So we have some good cricket to look forward to. It should be fun. The World Cup was disappointing, yes, but we've had so many good moments with this team. हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं. But I've been watching cricket for the last, I would say, a good 15 years, if not more. एंड जितना मैंने पिछले 2 साल में और 3 साल में क्रिकेट को देख कर एंजॉय किया इस टीम की वजह से, आई कांट वो रिमेम्बर अ टाइम बिफोर दैट कि मैंने इस तरह इतना आई वुड 99 में फील दैट पीक आई थी। इमोशनल अटैचमेंट टू अ टीम लाइक. तो इसलिए मेरे लिए तो ये टीम वैसे ही बहुत हाँ स्पेशल है. इवन इफ दे डू नॉट विन अ बिग टूर्नामेंट, दे हैव गिवन मी सो मेनी गुड मोमेंट्स that I always have to be grateful to them. So that's my सही। last take on this cricket team. चलें, Yeah. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। लेट्स होप No, दैट no, it was a पाकिस्तान डज pleasure. It वेल। was fun talking about cricket with someone intelligent for a while. So that is something I can do anytime. So you're more than इंशाल्लाह से welcome. आई we'll definitely do this again soon. Thank you so much for coming today and let's Sure. hope the best team wins the PSL. Thank you and Allah Hafiz. Allah Hafiz.